that you just gave, and the fact that you have also given your personal comments. We have known each other since college days, and we have been regularly in touch. I thank you and YD sir, especially, who got in touch with me and invited me to attend this lecture and share my views with my colleagues, junior colleagues who are still in college or have passed out. I would at the outset I would want to thank the organization, the organizers who have decided to hold such lecture series, which I think will go a long way in exposing current students to a lot of fields, especially because they are not only interacting with their alumni, but they're also getting a first-hand knowledge of what experiences these people have had in their careers post NIT Hamirpur. NIT Hamirpur has been a cradle of a very safe zone, for a safe area for all the students, but that is only for a period of 4 years. After that, students and people who pass out from the college, they go to different fields, and they are exposed to a lot of such experiences, which I think coming back and sharing with the students will help them quite a lot in making better decisions, better judgments. So I congratulate you and alumni cell for conceptualizing such a thing. My talk will be divided into more or less two parts. I have not prepared any presentation or anything. The reason for that being that I would want this to be a very interactive session, and I usually, would be answering almost everything that you ask me. There is no issues about that. First of all, I would like to explain civil services as a career. Thankfully, from NIT Hamirpur, a lot of students are now coming and joining civil services. There was a time when there were one or two in alternate years or over a period of long time. But now I've noticed that almost every year, few students are regularly coming in the shortlist of UPSC, which comes out every year, which is a very good sign and a very positive sign for students from NIT Hamirpur who are pursuing civil services as a career. So one part of my this talk would be about how my experiences in civil services have been, and this will, I hope, will help those people who are deciding to give the exam in future to decide for themselves how they want, what to expect from this service, what not to expect from this service, what it gives you, what it takes to actually perform the duties that we are doing on daily basis. The second part, which will be a rather brief one and a little more interactive one, hopefully, would be how, as an engineer, I feel working in the civil services has helped me, or what are the challenges that I face, what are the things that I feel that I should have done and I am doing or I could have done. So I think that could also be very helpful for the students in nurturing and preparing themselves for whatever career or whatever goal they want to achieve later on. And the third part, as I said, please feel free to ask any questions, whatever you want. Of course, I would not be able to answer questions which are related to preparation right now, because it has been almost 10 years now since I passed out or gave my exams. So I cannot discuss on those things, but anything else, I'll be very happy to share with you. Having said that, as a civil servant, as Amit sir just introduced me and gave my brief introduction also. In 2013, I joined civil services. Since then, I have had some trainings in a lot of illustrious and well-known academies like Masuri, Lal Bahadur Shastri Academy. I was in IRS also before that, so I have had the experience of working in income tax department and getting trained at Nagpur. There is a
academy called National Direct Taxes Academy, which is dealing with income tax laws in the country and implementation of it. And finally, I passed out from National Police Academy, which is in Hyderabad, and then joined my service in Himachal Pradesh cadre. So my experience in the academy was quite unique because uh, because of a lot of reasons, especially because civil services is such a difficult exam and so many people give it, and almost most intelligent of people come together at such academies and interact with each other, and it is a it is a very good experience for anyone to have. But I think more than the intelligence and hard work of the people that impressed me in my during my training days, I think it was perseverance and the cultural backgrounds that these people brought with them, which perhaps was a very humbling experience for me. Of course, students in NIT are very enterprising. In other places where I've been, they're very intelligent and they're very hardworking also. But the kind of perspectives, kind of experiences, and the desperate desire to be consistent at their work is something which I noticed in almost every of my batchmate in civil services academies, and that is something which is, I think, perhaps the exam itself grooms you to be a very persevering kind of person who keeps on, despite losing out on a lot of things. For example, you give attempts once or twice or thrice or four times, whatever it is, but you still keep on continuously doing it. One batchmate of mine who I have very fond memories of was my batchmate from Bihar cadre. He he used to work before joining the civil services as a. He also worked for a brief while as a security guard. Security guard, as in like he used to tell me how he used to prepare for his exams and also sit next to an ATM and prepare it. Like we all have seen those ATM security guards who sit there and uh, we don't really imagine that one of them would come up and become an IS officer in future. But this is one guy who managed to do it. It was quite an experience to discuss with him. I never was exposed to any such person who could come from such backgrounds to such levels. It was a very humbling experience. I realized that his efforts perhaps are much more than what I can even fathom. Similarly, there were a couple of other friends also who came from very humble backgrounds, but when it came to coming on the field of professionalism and working, these people were very confident. They did not, I think, you know, make excuses or keep things in their mind. Like, their background, the baggage of their background, I think perhaps never came to forefront when it came to working or competing in the civil services exam and in the academy. That was a very important lesson and perspective which I perhaps got in these academies. Secondly, I think, as I said, these people are from all over the country. We also have some foreign nationals who join us in National Police Academy. We train police officials from Bhutan, Maldives, Mauritius, and such neighboring friendly countries. And it was quite a good experience to interact with almost everyone who belong to all parts of the country. So these academies have had a very good impact, very lasting impact on my life. Uh, National Police Academy, if I give you a brief of how life is in National Police Academy, I think uh, the fact that everyone who has come in that academy has studied, and that is the only reason that he has come to this civil services, is because, like, he's able to study long hours and all those things. So that is why in NPA they focus more on the physical part of it. कि पढ़ाई तो कर लेंगे, इनको थोड़ा physical exercise ज़्यादा कराओ क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो करके ही आए. That is the attitude. But I think I, as I said, used to be
some sort of a sportsman, काफी बास्केटबॉल और बैडमिंटन वगैरह मैं कॉलेज में भी खेलता था काफी। तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट तो नहीं रहा, बट जो बाकी मेरे साथी थे, क्योंकि उन्होंने काफी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, तो आई थिंक उनके लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता था फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और उसमें सक्सीड करना। बट फिर भी एज आई सेड कि एकेडमी में जितने भी लोग होते हैं उनमें इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग है, दैट इज अ गिवन। बट परसिवियरेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो चीजें इसमें भी आई वाज प्रूव्ड राइट व्हेन आई saw that a person, जैसे प्लैंक होता है, आई होप एवरीवन नोज व्हाट अ प्लैंक इज, व्हेन यू वर्क आउट, एब्स का कोर का एक्सरसाइज होता है। तो मेरा एक बैचमेट था बिहार से जो कि एक प्लैंक भी नहीं कर सकता था, ही कुड नॉट सपोर्ट हिज बॉडी वेट ऑन हिज आर्म्स बेसिकली। बट बाय द टाइम 11 महीने, लगभग 11 महीने के अंदर जब हम पास आउट हुए कॉलेज अपने अकेडमी से, तो दैट पर्सन कुड डू 30 पुशअप्स विद इन अ मिनट, विच वाज क्वाइट अ फीट, क्वाइट अ अचीवमेंट फॉर हिम। तो मैं उससे वही मजाक कर रहा था कि मैं जब आया था तब भी 30 कर सकता था, अब मैं जा रहा हूँ तो भी मैं 30 का शायद 45 कर सकता हूँ, पर तुम जीरो से 30 आया, तो तुम्हारी जो प्रोग्रेस है या अचीवमेंट है, दैट इज मच मोर देन एनीवन एल्स। सो वो परसिवियरेंस, वो लगातार जो उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड दैट that physical aspect of it was a prime focus in National Police Academy. We have a lot of our entire batch, which comprises of around 120 IPS officers, is divided into different squads. ये squad जो है, they work under the supervision of जिनको हम उस्ताद बोलते हैं, you must have heard of it, of the term आर्मी में। And they are basically we do a lot of activities: horse riding, swimming, scuba diving, rafting. We do, of course, cross-country races. There are commando courses, things like that. Urban tactics, urban entry जो हम देखते हैं एक SWAT teams वगैरह की। तो इस तरह की बहुत सारा एक मॉड्यूल डिजाइंड है। शूटिंग, फायरिंग इज समथिंग दैट वी डू मोर ऑफन ड्यूरिंग द वीकेंड पे आप जाके अलग अलग वेपन्स के साथ यू कैन यूज दैट। एज आई वाज सेइंग, नेशनल पुलिस एकेडमी में फंडिंग इतनी ज्यादा है कि हमारे पास कोई वैसा इतना 11 मंथ्स जस्ट वैनिश्ड लाइक दैट। 8-9-10 करोड़ की तो उस टाइम शायद वेपन्स और उनकी एम्यूनिशन की ही खर्चा लाते थे। बट इट इज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस अगर किसी को अवसर मिले तो लेना जरूर चाहिए, बट आई थिंक फॉर दैट यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम इटसेल्फ। बट मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एज आई सेड, एक रीजन ये भी था कि इट वाज लाइक गोइंग बैक टू जैसे साइकिल रीसेट हो जाती है उस तरह से। आफ्टर प्रिपेयरिंग, you obviously it takes a toll on your physical activity, because like you're sitting for long hours and like perhaps studying a bit too much, थोड़ा physicality पे focus ज़्यादा होता है, and you feel refreshed after a period of 11 months. तो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। एंड I mean, I can actually go on talking about it, but in brief, it was a very good experience and perhaps something which prepared us for our future assignments. हालांकि हमारी नौकरी, जैसे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, हमारी नौकरी इस तरह की है कि no matter what you train for and how much you train for, nothing really can train you for such a job, जो कि मैं अब एक्सपीरियंस करता हूँ। खैर, आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम नेशनल पुलिस एकेडमी, वी जॉइन कार्डर्स। जैसा सभी को होपफुली पता ही होगा, पूरे इंडिया में जितने भी 120 ऑड IPS officers who are selected or IAS officers who are selected, they are divided into different स्टेट कार्डर्स। तो स्टेट कार्डर में आप जो भी आपका स्पेसिफिक चॉइस के ऊपर, रैंक के ऊपर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, वैकेंसी के ऊपर आपको एक कार्डर मिलेगा। नाउ आई एम टोल्ड द सिस्टम हैज चेंज अ बिट, और अब आपको जोन के हिसाब से एरिया मिलता है, बट हमारे टाइम में जो है कार्डर मिलता था, एंड दैट इज द पेरेंट कार्डर। उस पेरेंट कार्डर में आपकी इंडक्शन सबसे पहले होती है। उसके बाद you can go on deputations and assignments in other organizations. तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं जिसमें पुलिस ऑफिसर्स यूजुअली जाते हैं, तो
स्टेट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो है ही है, जिसको हम देखते हैं एज वी सी लाइक पीपल हु आर, जैसे मैं अभी एसपी हूँ यहाँ पे, तो या एसपी या आईजी या डीजी, दे आर इन द स्टेट कार्डर। इसके अलावा ऑप्शंस जैसे हम पैरामिलिट्री में यूजुअली आईपीएस ऑफिसर्स जो गो फॉर डेपुटेशन। पैरामिलिट्री इंक्लूड सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, आई थिंक आई सेड ऑलरेडी। तो इस तरह की आईटीबीपी वगैरह जो है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में वी कैन गो। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए फेडरल एजेंसीज हैं, जैसे सीबीआई है, जैसे एनआईए है, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और इस तरह की कई अदर फैकल्टी, अदर ऑर्गेनाइजेशंस अदर। एनआईए है जो टेरर एक्टिविटीज को वो करती है। इसके अलावा police officers can also are usually going to IB, Intelligence Bureau. They're also going to RANW, RAW, and they also go to embassies abroad. They go for UN assignments, United Nations assignments. They also work for this thing, central government agencies in different role, like किसी department में या किसी, as for example the DGP, current DGP has worked in water resources department as joint secretary. So इस तरह की काफी avenues हैं which are open on deputation. इसके अलावा you can go to private PSUs also as vigilance officers. वो भी काफी IPS ऑफिसर्स गए हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इत्यादि इत्यादि। ऐसे बहुत सारी, देयर इज अ बिग गैमेट ऑफ एरियाज दैट यू कैन चूज टू गो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक एंड हाउ यू लाइक इट। तो सिविल सर्विसेज में जो मेरा अभी एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज वेरी वेरिड, बिकॉज ये तो हमारा बैकग्राउंड है, ये तो हमारी जैसे नेशनल पुलिस एकेडमी के बारे में मैंने आपको बताया, हमारे कहाँ कहाँ पुलिस ऑफिसर्स यूजली जाते हैं उसके बारे में बताया। बट एक एक्सपीरियंस जो मैंने नोटिस किया कि माय फादर एंड माय फैमिली हैपन टू बी आल्सो फ्रॉम दिस सर्विस, तो मेरे को थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि किस तरह का काम है, किस तरह का, मे बी दैट वाज द रीजन व्हाई आई डिड नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट टू बिगिन विद। बट लेटर व्हेन आई डिसाइडेड, तो मेरे को आई थिंक I liked the job. I am liking the job, but often I have seen that there are a lot of people who come with a different expectation in the service and they feel cheated eventually because they realize कि शायद ये हमने नहीं सोचा था कि इस तरह का होगा, but वो उस तरह का निकला. That is also someone that some people that I have, some of my batchmates or juniors or whatever, like who I've noticed that sometimes they have different expectations from this job. क्योंकि हमारे जैसे कि आई वाज रीडिंग समवेयर इन ऑन ट्विटर दैट generation right now is very politicized, in the sense they take very keen interest in politics and how governance and things like that. People like Prashant Kishore and others have I think generated even more interest in this field for a lot of people. IAS, IPS, and other civil services happens to be a very good forum for beginning this such a interesting career. But हमारी एक्सपेक्टेशन जो हम जिसको कई बार बोलते हैं कि पावर का, जो हम पावर के साथ जो हम लिंक करते हैं, दैट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म कि बहुत पावर है. So I think in a place like democracy, power का concept is very misunderstood. There is no such thing as power. Narendra Modi, for example, the Prime Minister of India, cannot claim he has the power. Power lies with the voter in that sense. But voter alone is not going to make a difference. So I think हमारा democracy is so beautifully managed कि power एक center में कहीं भी नहीं है. It is so beautifully balanced. चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हो. Power in true sense will lie with the voter who basically chooses who rules the government or makes the government. तो ये कॉन्सेप्ट जो पावर का अंडरस्टैंड करते हैं कि IAS ऑफिसर्स की पावर बहुत है, ये है, they are only as long as you're able to exercise them in right spirit and
you know, if you can even exercise them at all, like there are often times where जब आप ऐसी जगहों पे posted हैं जहाँ पे आप जो चीजें करनी है वो कर नहीं पाते, because ultimately I think anyone who can influence x number of human beings, मतलब अगर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप को अगर आप उनकी विचारधारा को या कंट्रोल कर सकें तो शायद आप उनके ऊपर कुछ पावर एक्सर्ट कर सकें, बट वो चीज इम्प्लीमेंट करना एक बहुत डिफिकल्ट काम है आज की डेट में। जैसे पहले हम कभी देखते थे कि एक आईएएस आईपीएस होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, आज की डेट में थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, बिकॉज यू आर नॉट ओनली just because you're an IAS officer or an IPS officer, someone will respect you, someone will, you know, treat you like God or something like that. It's a very, I think I don't approve of that concept at all. You have to earn your respect just like any other profession. और अब थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया कि we are more, the country, the people have very high expectations from people who are coming and joining the service. Of course, a lot of people who are joining the service also have that enthusiasm to do a lot of things for the country, for people they're serving. But I think अब जो आदमी ज्वाइन करेगा सर्विस, इट इज नॉट लाइक एनी अदर सरकारी नौकरी कि आपने सरकारी नौकरी में किया, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक काम किया और घर यू गो बैक होम. दिस इज आई मीन एटलीस्ट इन सम रोल्स इट इज अ फुल टाइम वर्क. आप सारा दिन सारे रात, आई मीन देयर इज नो फिक्स्ड टाइमिंग फॉर यू टू लाइक गो अवे फ्रॉम वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये एक्सपेक्टेशन जरूर रखें कि आप अगर इस सर्विस में आ रहे हैं तो आई थिंक एक तो ये पावर का कॉन्सेप्ट कि मैं बहुत पावरफुल हो जाऊंगा, इसको भूल जाएं, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं. दूसरा, अगर आप इस सर्विस में आ रहे हैं तो जो आपने शायद आज से कुछ जनरेशन पहले देखा होगा आईएएस ऑफिसर्स या अपने जिले के कलेक्टर या एसपी को कि वो केवल ऑर्डर करते हैं और बाकी कुछ उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, ऐसा नहीं है. अब नाउ थिंग्स हैव चेंज क्वाइट अ बिट. यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल. आपका ट्विटर और उस पर इतनी कंप्लेंट्स आती हैं कि आपको मिलने की जरूरत भी नहीं है. सो लाइक थिंग्स लाइक दैट आर डिफरेंट. सर्विस में आके आई थिंक इफ यू कैन ऑब्वियसली जस्ट सर्वाइव इन द सेंस कि आप तनख्वाह लेके घर जा सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट आई डोंट थिंक दैट such a person can flourish in this service. कुछ लोग करते भी हैं, people survive, but I think आप इस सर्विस में एक्सपेक्टेशन ये लेके जरूर आए कि once you get into the civil services you will have lot of pressure on you. It is true that the exam itself, जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, वो आपको तैयार करता है इस तरह के एग्जाम के लिए, सॉरी इस तरह के करियर के लिए, बट आई थिंक ये चीजें आपको अभी से माइंडसेट में रखना चाहिए. मोर अनकंफर्टेबल यू आर, more in pressure situations you put yourself in, more you're preparing yourself for the time to come, for future. अभी भी जैसे आप अगर एक comfort zone में ही खेलते रहेंगे तो I think it is very difficult for you to improve in future. So I think अभी से भी आप like in your temperament, in your attitude, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने का या फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट में डालती है तो जरूर है, बट लाइक यू कम अप विद सॉल्यूशंस. उस चीज की प्रैक्टिस आप करें अभी तो आपको फ्यूचर में इस करियर में काफी हेल्प हो सकता है. द एग्जाम एज आई सेड इज आल्सो वेरी कंसिस्टेंट. मैं ब्रीफ में आपको एग्जाम का भी बता देता हूँ. पैटर्न अभी हालांकि थोड़ा चेंज हो गया, बट ब्रॉड पैटर्न इज ऑलमोस्ट द सेम. This I'm assuming because like some people might not know how it is. ये मैंने पहले स्किप कर दिया, बट the exam starts with a preliminary paper which is a multiple choice negative marking paper which happens this is the first thing that happens. I think जो preliminary exam होता है उससे serious और non serious candidates को छांटा जाता है एक तरह से, कि जितने लोग उसको प्रिलिमिनरी देते हैं जो थोड़े बहुत मार्जिनली या समवॉट सीरियस भी हैं, वो अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आई थिंक द एक्चुअल एग्जाम हैपेंस टू बी द मेंस एग्जाम. मेरा ये मानना है कि मेंस एग्जाम जो है इट इज द एक्चुअल एग्जाम ऑफ यूपीएससी. तो मेंस का एग्जाम होता है प्रीलिम्स के बाद, जो लोग क्वालिफाई करते हैं दे कम टू द मेंस एग्जाम. मेन एग्जाम जो है वो लंबा, कई उसमें
अगर आप, आई एम श्योर यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट ऑल्सो, कई तरह के उसमें सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका रिटन में पेपर आता है. और once you are over with the mains exam, the final phase of this exam is the interview, which happens in UPSC in Delhi. और उसके बाद जो है आपकी मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के जो है आपकी फाइनल मेरिट बनती है. एंड अकॉर्डिंगली यू आर आइदर you get the services that you need. There are a lot of services which are there. One group is called All India Services, which includes Indian Forest Service, Indian Police Service, and IAS. These three are called All India Services. इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस है, इसके अलावा 2 इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हैं. एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस है इनकम टैक्स की, एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस है कस्टम्स की, जिसमें आप वो कर सकते हैं. इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर सर्विसेज आल्सो, सच एज इंडियन रेलवेज में सर्विसेज हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विसेज है. इन सभी का एक ही एग्जाम होता है. देन देयर आर ग्रुप बी सर्विसेज सच एज दानिक्स, यानी दिल्ली और यूटी के लिए जो पुलिस सर्विस होती है वो, जो सिविल सर्विस होती है वो. तो देयर आर लाइक अराउंड 20-30 ग्रुप ऑफ सर्विसेज जो आपको इन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के जो आपका मेरिट बनेगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा. तो ये एग्जाम जो होता है, इट इज अ ईयर लॉन्ग अफेयर, मतलब पूरे साल तक ये चलता है. आई थिंक द एग्जाम इटसेल्फ प्रिपेयर्स यू फॉर प्रेशर सिचुएशंस दैट यू विल बी डीलिंग विद इन फ्यूचर. आपको ये पेपर क्योंकि 1 साल का होता है, जैसे ही आपने इंटरव्यू दिया और अनफॉर्चुनेटली आपका इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो यू डू नॉट गेट एनीथिंग. यू गो बैक टू द सेम पोजीशन एंड स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच प्रीलिम देके. मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने एक बार इंटरव्यू तक पहुंच गया तो उसको मेंस प्रीलिम से छूट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है. इंटरव्यू आपने दिया, इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर दोबारा आप प्रीलिम का एग्जाम देंगे 0 से. तो किस तरह से आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता. But as I said, perseverance is something that I have found in each and every individual who came to that who got selected in those civil services and came to the academy. So perseverance ही I think is something that makes them succeed, and perseverance is something that I think civil services की जब career करते हैं या काम करते हैं आप करते हैं आपको काम आती है. खैर, तो ये हमारा एक brief I think I have been able to do justice in that limited time to what civil services as per me, as per my version has been so far. काम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ब्रीफ जो है थोड़ी देर में दूंगा, वेयर आई एम डिस्कसिंग हाउ एज एन इंजीनियर सिविल सर्विसेज में आई फील दैट इट इज हेल्पिंग मी और मे बी इट इज नॉट हेल्पिंग मी. बट आई थिंक सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, मैं एक इंजीनियरिंग या इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, या प्रिपरेशन या नौकरी, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई थिंक engineers, yeah, at least I'm not say everyone, I mean at least मैं अपनी बात कर सकता हूँ, which I feel that I lacked quite a bit, and some people who I interact with regularly, जो मेरे बैचमेट्स हैं जिनके साथ मैं आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी जुड़े हुए हैं, तो हम उनके साथ जब भी इंटरेक्ट करते हैं, तो 2-3 चीजें जो परहैप्स आप लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं या इंटरेस्टेड है, या इन जनरल ऑल्सो, नॉट जस्ट फॉर सिविल सर्विसेज, वैसे भी आई थिंक वी शुड बी एबल टू फर्स्टली रीड, वी शुड रीड क्वाइट अ बिट. हमको अलग अलग चीजें सिर्फ अपने फैकल्टी जो बताती है या सब्जेक्ट के टॉपिक्स हम के अलावा हमको बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, जो मेरे को रियलाइज हुआ अकेडमी में भी, बिकॉज there are people who coming from diverse background, and I realized that, like, perhaps they have studied quite a bit, they have read other books, for example literature की books या economics की books या philosophy for that matter. तो ये सब चीजें हमारे पास हम जो है काफी हद तक स्किप कर देते हैं या मिस कर देते हैं किसी ना किसी कारण से, क्योंकि वी आर मोर फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ओनली. तो वो चीजें आई थिंक बहुत जरूरी है. रीडिंग इज वन हैबिट दैट वी मस्ट डेफिनेटली हैव, और ये यूपीएससी की तैयारी के टाइम भी बहुत काम आती है. सेकेंडली, वी शुड बी एबल टू राइट, I won't say well, but I think well का definition तो I can't give specifically, but we should be able to write what we are thinking, like हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको एक क्रिस्प क्लियर तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. ये एक बहुत बड़ा
जो आई थिंक परहैप्स मिसिंग है हमारे उसमें. मे बी वी आर राइटिंग टू मेनी फॉर्मूलाज एंड वो सब चीजें मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन ज्यादा लिखते हैं, इसलिए हमको वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो लिख पाना कई बार मुश्किल हो जाता है. बट आई थिंक वी शुड डेफिनेटली राइट एसेज, शॉर्ट एसेज, वट एवर हाउ एवर यू प्रैक्टिस. इसके बहुत सारे तरीके भी हैं जो आपको मिल जाएंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली लाइक परहैप्स अ सेशन कुड बी देयर, वी जस्ट ब्रेनस्टॉर्म यूथ पार्लियामेंट के थ्रू या डिस्कशन से, आर्गुमेंट से अपने साथ कोई एक सोसाइटी इस तरह की भी बन सकती है एनआईटी हमीरपुर में, जहाँ पे आप लोग you just sit and discuss ideas. You don't have to philosophical society, for example. I mean, I'm just giving an example where you just sit and discuss ideas like कोई भी एक इशू ले ले. फॉर एग्जांपल अभी आपने सबसे ज्यादा चर्चा जो हमारे मीडिया सर्कल्स में या सोशल मीडिया में, फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, या फिर रिसेंट जो आर्यन का जो ड्रग केस था, वो इन इश्यूज में व्हाट आर द क्रक्स ऑफ इट. सुशांत सिंह राजपूत में डिड वी लूज out on mental health issues that are affecting the people, and what can be done about it, like how mental health act and other legislations help or not help or something like that, how rehabilitation and such kind of issues can work out. So these things perhaps go a long way in it will help you out. So we should I think have some forum where we can discuss all these ideas. तो उसके लिए लिखना, डिस्कस करना, रीड करना इज वेरी इम्पोर्टेंट. इसके अलावा जो थर्ड वेरी इम्पोर्टेंट स्किल विच आई थिंक लॉट ऑफ पीपल do not have is the ability to so I think the third skill which is really important is the ability to write well, and sorry, third thing is to be able to speak well. I mean, speak well in the sense कि ये एक अलग सा it is a different this thing, ये practice से ही I think आ पाता है. मैं भी आई थिंक जो थोड़ा बहुत पहले आई यूज्ड टू बी वेरी शाय, स्टेज फ्राइट मेरे को बहुत ज़्यादा थी. यहाँ पे भी आके मैं नर्वस तो ज़रूर हूँ, बट आई थिंक आई हैव डन इनफ नंबर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कि मेरे को नर्वसनेस तो कम से कम नहीं होगी. मैं अपने विचार क्रिस्प तरीके से क्लियरली रख पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ वो अलग बात है. बट एटलीस्ट आई थिंक प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एट अ फोरम और दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो कि हमारे कई बार इंजीनियर्स हमारे यही था कि सीधा हॉस्टल से घर आओ और घर से हॉस्टल से क्लासरूम आओ, क्लासरूम से वापस जाओ. दैट थिंग वाज देयर. बट आई थिंक स्पीकिंग इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट. ये इन तीनों चीज़ों पे मैं कई बार ये सोचता हूँ कि लाइक मे बी आई शुड हैव रेट्रोस्पेक्ट में दैट मे बी आई शुड हैव वर्कड a little more on that in my college days, जहाँ पे मैं रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता, तो मे बी इट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल. बट एज आई सेड, देर आए दुरुस्त आए, मैं थोड़ा सा इस पे काम कर रहा हूँ. एंड नाउ दैट आई एम also not losing opportunities to talk to people and give ideas and write my views, तो मेरे को बहुत फायदेमंद रहेगा, फायदेमंद लगता है. एंड आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल. जो हमारा इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें एज अ सिविल सर्विसेज, आई थिंक इट इज अ वेरी सक्सेसफुल फील्ड फॉर एन इंजीनियर. हर साल 60 से 70% जो लोग आते हैं सिविल सर्विसेज में वो इंजीनियर ही होते हैं. एंड दीज पीपल यूजुअली आर फ्रॉम डिफरेंट IIT से, कोई कहाँ से ज़्यादातर वहीं से होते हैं. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी good field to choose, to be in and ultimately come into civil services. But एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली जो बात है, आई थिंक उसका बहुत एक हेल्प रहता है मेरे को लगता है जब व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज. आजकल रिसेंट क्राइम ट्रेंड के अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है. क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, डार्क वेब के बारे में डिस्कस करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एंड इट्स overarching influence over politics and our lives and in such.
there are economic offenses where you have long, economic trails and financial trails and things like that. Everything has gone international in that sense. तो इन सब चीज़ों में I think it is a very vast space. I'm not saying I'm an expert at it. I'm very अभी तो जिसको बोलते हैं ना कि we haven't even scratched the surface. It is such a vast field. इसमें एक इंजीनियर का एक बहुत बड़ा रोल I think हर लेवल पे एक इंजीनियर का ही काम है इसमें, और तो I think no one else can really talk about it. But it is not involved with the mere pure engineer as such. इसमें आपको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें आपको पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो आना चाहिए. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विच आर फील्ड्स विच आर अपकमिंग. ज्योग्राफिकल फॉर एग्जांपल आजकल जो भी क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग कहाँ कहाँ हो रही है, क्या क्या, इन ऑल दीज थिंग्स आर बिकमिंग वास्ट टू क्वाइट एन एक्सटेंट. सो आई थिंक इंजीनियर के लिए तो बहुत बढ़िया करियर है, एंड आई वुड नॉट want to brag, but I think मेरे को तो ये लगता है कि इंजीनियर्स ही ज़्यादा सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनते हैं, because बहुत सारे आते हैं इसलिए, but like there is a trend where I see that lot of successful engineers, so a lot of engineering background students have become successful civil servants. जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें जो आजकल नहीं आ रही हैं, साइबर क्राइम, क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब इत्यादि इत्यादि, ये सभी चीज़ें अब आउटसोर्स भी हो रही हैं. सो यू डोंट हैव टू बी एक्चुअली बी अ सिविल सर्वेंट टू solve cyber crime or help out in these things. There are a lot of startups which have come up. We also associate with a few which help us in situations where we need to solve cases that involve such kind of things. So उस पे भी I think you guys can work on. You don't have to specifically join the police service to actually solve cyber crime issues or things like that. You can also think of a startup which provides solutions to such situations. हमारा advantage ये रहता है as a civil servant is that not only do you understand the engineering aspect, like to some extent, how cyber criminals might operate, but you also have an understanding of criminology as a subject. You also have understanding of the laws which are governing these things, IT laws, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें जो साइबर लॉज इंडिया में है, तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. वो थोड़ा सा एक एज अ पुलिसमैन मेरे को लगता है कि हमको एडवांटेज है. बट आई थिंक एज अ प्योर इंजीनियर ऑल्सो you can be very successful when it comes to investigation of cyber crimes and this entire forum of IT related things which are coming up. As we know that Facebook, Twitter, all these forums, Instagram for that matter, have become very important and unavoidable these days. So either way, you can join the civil service, have an understanding of how it works on grassroots level and how you're able to do it, or you can also have some kind of, or work for some kind of startups or companies which are working on such issues. It will be very beneficial for you to think about it, I think. अगर साइबर क्राइम का ही मैं एग्जांपल दूं तो हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वी हैव फाउंड लॉट ऑफ केसेस. यू मस्ट हैव सीन नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जामतारा करके. वहाँ पे जामताड़ा इनफैक्ट इज अ प्लेस वेयर माय बैचमेट वाज पोस्टेड एज द एसपी. तो उससे भी मेरी इंटरेक्शन हो रही थी. जस्ट अ सेकंड. या आई होप आई एम ऑडिबल. तो जामताड़ा वाज वन वेरी क्लियर एग्जांपल. आप लोग देखें, नेटफ्लिक्स पे देख भी सकते हैं. That is exactly how it works. It is a very good description of how criminals with almost no engineering background, no education background, fleece poor innocent people of lakhs of money by simply using such petty cyber crime techniques. Then there are we have busted fake call centers in Delhi and Gurgaon and places like that where hundreds of people sit there and take advantage of gullible people and cheat them of all the money and their hard-earned money. तो इन चीज़ों का एक्सपोजर आप ऑफ कोर्स आज में वही इंटरनेट का ज़माना है, तो आप लोग सभी इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें ट्रेंड्स हैं. आई हैव इन अ वे इनिशिएटेड यू इन दैट डायरेक्शन.
फाइनली आई थिंक मैं अगर कंक्लूड करूँ तो मेरा ये मानना है कि इंजीनियर एज सच हैज बीन एबल, आई मीन आई थिंक इंजीनियर तो सब कुछ कर रहे हैं आजकल, मूवीज भी बना रहे हैं आजकल, स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहे हैं आजकल, स्टार्टअप्स तो है ही, और लॉट ऑफ डाइवर्स थिंग्स दे आर डूइंग. सो आई थिंक एज एन इंजीनियर यू शुड कीप योर माइंड वेरी ओपन. आपको जो एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, दैट इज समथिंग विच यू शुड टेक a lot of advantage of. And साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड एक ऐसी चीज है जो आई थिंक उसको इनकलकेट करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं कि बाय डिफॉल्ट ही आया था आपको. तो आई थिंक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है, यू हैव दैट scientific bent of mind. You should inculcate it and develop it further. Put yourself in uncomfortable positions. Try to read, speak, write well. Have perspective. Use internet and its entire power to be successful. I'm pretty sure that all of you can do it, and if not in civil services, you can definitely, as an engineer or as a pure engineer also, you can choose your forum. But I think आपको जितने भी all the tools that you need to succeed in life perhaps वो आप अभी इन 4 सालों में जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तब वो गैदर कर सकते हैं. फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर विल टेल. You need not do good work only by joining civil services. I have chosen to do it and I am really loving it. I like it. And अभी मैं जैसे SP ऊना हूँ, my schedule and everything is very interesting, and you can definitely message me or whatever, like हम alumni तो है ही है. I mean, as alumni होने के नाते भी you can obviously interact with me. बाकी सोशल मीडिया पे तो everyone is there only. But आप ये 4 सालों को I think you should equip yourself for not only your educational जो आप अभी इंजीनियरिंग का कोर फील्ड में या कोर एरिया में कर रहे हैं, but also as a future perspective you should focus on 2-3 things which are important, which might be helpful in the future in whatever career you choose. I'm pretty sure all of you will do really good. I think and now I will conclude my talk. If you have any questions or queries ranging from anywhere, I think you can definitely ask me. I would try to answer them as honestly and plainly as possible. Sir, when did you start preparing for the civil services? So I passed out in 2005. उसके बाद कोई 5 साल मैंने जो है मतलब I was not really interested in civil services as such. I had not given it a thought. फिर उसके बाद I started giving exam. 2011 में मेरा HES एक हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसमें हुआ था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड गिवन यूपीएससी का एग्जाम आल्सो, जिसमें मैं हिंदी में फेल हो गया था मेंस के एग्जाम में, व्हिच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं हिंदी में फेल होऊंगा. बट खैर वो एक पहला झटका जरूर लगा था. बट उसके बाद मैंने दोबारा दिया तो मैं 2011-12 में इनकम टैक्स IRS इनकम टैक्स में आया और 13 में IPS में. तो that is how ऐसे में मतलब that is how it was. I hope that answers you. Yes, sir. Thank you, sir. Anyone else? Yes, sir. Good evening, sir. Sir, is there any difference in between preparing for HAS or IAS? The UPSC. HAS और IAS एग्जाम का पैटर्न तो एक जैसा ही है, बट थोड़ा सा मैंने जो मैं एज आई सेड कि मैं आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू क्लियर कट आंसर्स बिकॉज मेरे को लगभग 10 साल हो गए ये एग्जाम दिए हुए. तो अभी क्या ट्रेंड है वो मेरे को पता नहीं है स्पेसिफिकली. बट जब मैं एग्जाम दे रहा था, देयर वाज अ क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जाम. यूपीएससी हैपेंस टू बी UPSC happens to be a very diverse kind of exam. HS में faculties को check करने वाली अलग होती है, pattern of writing is a little different, but I think ज़्यादा difference तो काफी है, but I think checking के तरीके में या किसी उस तरीके में थोड़ा difference है. Otherwise pattern तो more or less same ही है दोनों exams का. Competition obviously different है, subjects के options ज़्यादा हैं. There's a thing called scaling which was there at our time. वो यूपीएससी में होती है, यहाँ नहीं होती है. तो आई थिंक
HAS में हमारे टाइम में ऐसा जरूर था कि कई बार एक ही सब्जेक्ट के लोग सारे जो है ना इकट्ठे आते थे। अभी 6 had got selected in HAS when I was there और मेरे से जो बाकी मेरे को छोड़ के जितने भी 5 लोग थे उनका सब्जेक्ट बॉटनी या जूलॉजी था, तो वो कई बार HAS में आ जाता है। तो ऐसा यूपीएससी में बहुत रेयरली, आई डोंट थिंक ऐसा कभी होता है कि एक ही सब्जेक्ट के लोग जो है सक्सीड कर रहे हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बाकी पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों एग्जाम। Thank you, sir. Hello, good evening, sir. या प्लीज Sir, it is possible मेरे को to clear the जस्ट UPSC. सेकंड मेरे को इंट्रोड्यूस अगर कर दें कि आप कौन One हैं at a time, और one at a time, please. तो इट विल बी गुड अगर आप बता पाएं कि कौन है और क्या पढ़ रहे हैं ताकि मैं भी आपके बारे में कुछ जान सकूं। यस प्लीज, आप पूछें। Sir, मेरा नाम राजुल द्विवेदी है, एमटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट। सर, विदाउट कोचिंग पॉसिबल है सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना? देखिए एक टाइम पे तो शायद नहीं था, जो हम या हमसे पहले के लोग थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत वास्ट था। बट एक्चुअली कोचिंग आजकल तो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। यूपीएससी आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, नो डाउट, ऑब्वियसली कर सकते हैं। कोचिंग का एक बार में एक्चुअली कोचिंग का सिर्फ एडवांटेज ये रहता है कि आपको वो थोड़ा सा शॉर्टकट इन द सेंस कि जो चीजें आपको नहीं पढ़नी वो हटा देते हैं, जो चीजें आपको रेलेवेंट है वो करवा देते हैं, उसका थोड़ा सा एडवांटेज जरूर रहता है। बट आई थिंक आपको स्पेसिफिकली कहीं जाके बैठ के क्लास लगा के वो करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक सिंपल ये मटेरियल जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और आप कहीं अच्छी जगह चंडीगढ़ या दिल्ली से प्रोक्योर भी कर सकते हैं इसको। अगर वही पढ़ लेंगे तो भी आपको थोड़ा सा क्लियर कट हो जाएगा। हाँ, आपकी पहले ये जरूर था कि आपको मेहनत करनी पड़ती थी कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ूं, कौन सी किताब कहाँ से लाऊं, किस काम की कौन सी किताब यूजफुल है, कौन सी नहीं है। तो आपका टाइम वेस्ट थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है अगर आप एक कोचिंग या कोचिंग का मटेरियल या कोई इस तरह का लें। बट अब तो और भी अच्छा, जैसे मैंने कहा, आप लोग ऑनलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं या परस्यू कर सकते हैं कोचिंग को, कोई फिजिकल प्रेजेंस भी जरूरी नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई थिंक ऑफ कोचिंग इनएविटेबल नहीं है, कोचिंग थोड़ी हेल्पफुल जरूर हो सकती है, बिना कोचिंग के भी आप क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं। Thank you, sir. Thank you. जी, Good evening. Good evening. जी जी Good evening, sir. Sir, I am Atul from Gorakhpur, Uttar Pradesh. So I have a kind of perception about civil servant that they are very honest person, particularly for in my case. But recently I was reading a book that is a small thing matter by ex-chairman of UPSC, Mr. Deepak Gupta, sir. So I was reading a particular chapter where he was claiming in governance in particular, like socio-political and criminal nexus is still present in our society. Yes. And being a citizen of Gorakhpur only, I seen the police brutality in the famous police Gorakhpur case you might be heard of. And in recent month, I don't know, in May somewhere, like a famous tribal leader died in custodial death was particularly also in the news. So as a civil servant and as a person, like a person who was who was having a faith in civil servant, but I'm seeing a civil servant with a skeptical view I'm having right now. So, sir, how to restore that faith again? आप देखिए, अगर आपको सिविल सर्विस या ऑफ कोर्स अगर आप ये, आई एम नॉट डिनाइंग कि इस तरह की चीजें नहीं होती, अगर आपको इन चीजों में चेंज करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप आए इस सर्विस में। क्योंकि आप अगर ये चीजें सोचते हैं, इफ यू थिंक ऑफ सच थिंग्स, ऑब्वियसली यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू थिंक such things will not be there, so it will be सॉरी तो या सॉरी आप अगर आप जैसे लोग जो पैशनेट हैं इस चीज़ों के बारे में, जो ये सोचते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर आप जैसे लोग इस सर्विस में ज़्यादा होंगे तो ये चीज़ें कम होंगी, ऑब्वियसली बात है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली पुलिस, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग हैज, आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो नेक्सस, देयर इज अ नेक्सस,
That is why things work in India the way they are working. But इन चीजों को तोड़ने के लिए भी I think you need more viewpoints and more people who are like who have some kind of ethical and understanding of it. ये चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. It is a very argument wala situation है. For example, there was a rape case in Hyderabad, if you remember, and then वो जो rapists थे, they were I mean encounter हो गया था उनका. I mean if you remember, नीचे South India में. Was that right? Was that wrong? जिस तरह से निर्भया केस में the punishment was delivered after such a long way. शॉर्टकट में जिस तरह से एनकाउंटर हुआ वो सही तरीका था या जिस तरह से लॉ took its course in निर्भया case and eventually punished those people, is that the correct way? इसके बारे में तो आर्गुमेंट करने पे कुछ लोग उस पे एग्री करते हैं, कुछ लोग उस पे एग्री करते हैं. बट हैविंग सेड दैट, हर आदमी ऐसा नहीं है ऑब्वियसली. पुलिस वाले अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको पुलिस वाले ही पकड़ते हैं. तो ये चीजें such things should not make you skeptical, but I think they should motivate you to come in this service, come in this field and see it from within and perhaps clean it further or make it even better than what it already is. तो ये मेरा विचार है. Good evening, sir. So my name is Namrata Yadav and my branch is electrical engineering. Sir, I would like to ask you that what is your suggestion regarding taking the optional engineering subject as optional in your civil service exam? देखिए अभी तो मैं बता नहीं सकता एज आई सेड, बट हमारे टाइम में मैंने ज्योग्राफी और साइकोलॉजी लिए थे ऑप्शनल. अब तो एक ही ऑप्शनल होता है. The reason why I opted for it over mechanical engineering was because mechanical engineering is a very उसमें काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स एक तरह के, it is many subjects in one subject. तो उसके सेंस में ज्योग्राफी और साइकोलॉजी was a subject which I had interest in also, and like I chose to go ahead with it. But I think आपको रिसर्च करनी चाहिए इसके ऊपर. आपको रिसर्च करनी चाहिए इसके ऊपर. और वट एवर सब्जेक्ट यू लाइक, इंजीनियरिंग भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है. इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी लोग आते हैं इसकी वजह से. बट आई थिंक दैट चॉइस इज बेटर इफ यू डू इट आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस. Like sir, being like you say the interest, and also we should keep in mind the time the subject take to the preparation, then we should choose go for the subject choice. यस यस. And so one more question. बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि देखिए आपको अल्टीमेटली एग्जाम क्लियर करना है. लोग पाली का एग्जाम, पहली सब्जेक्ट लेके कोई और सब्जेक्ट लेके भी एग्जाम क्रैक करते हैं. तो आई थिंक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को ही लेके हम पास होंगे ऐसा नहीं है. यू कैन स्टडी अ डिफरेंट न्यू सब्जेक्ट एंड देन गो हेड विद इट. तो ये चीजें प्रैक्टिकलिटी जो व्यवहारिक बात है ना, वो भी कंसिडर करनी चाहिए कि इससे मेरा एग्जाम हो भी पाएगा. ऐसा ना हो कि मैं तैयारी ना कर पाऊँ, पूरा सब्जेक्ट ही या सिलेबस ही कवर ना कर पाऊँ. तो आई थिंक वो चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. तो Yes, sir. So one more question is there that it's related to engineering services and civil services exam. So should be if we are appearing for engineering exam first, yeah. So what should be the time duration from which year we should start for engineering services? And if we are planning to go for civil service examination, then what should be the timing for that? Like sir, can we go for we can give that exam in a final year of engineering service exam? Yes. Or we should go for civil service exam after the graduation, completion of the graduation. So should we go for engineering service exam during our college years or after the college year? नहीं देखिए, वो तो ऑब्वियसली आपको यू हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन तो इस एग्जाम के लिए. सो आई थिंक यू शुड नॉट गिव द एग्जाम फॉर द सेक ऑफ इट. आपको अगर पुराने एग्जाम के पेपर या इस तरह की चीजें देखनी है तो आपको मिल जाएंगी ऑब्वियसली फ्रॉम अदर लाइक फ्रॉम इंटरनेट और व्हाटएवर. यू कैन गो एंड सी इट एंड रियल टाइम में आप पेपर भी दे सकते हैं उसका. बट आई थिंक प्रिपरेशन तो अभी से प्रिपरेशन है. आई थिंक लाइक एज आई सेड कि ये चीजें स्पीकिंग, राइटिंग,
reading, all these things like is a practice which you will already start. And once this practice goes into your habit or whatever, like in future you will be able to. Yes, sir. Yeah, so like these things you can do. Thank you, sir. Sir, I have one question. My name is My name is Devdeep. Kushal. I am from Computer Science Engineering branch. And sir, I just wanted to ask you that after so much of service in police department, do you feel satisfied with the job? Are you, many people like after working in a field for a while, they feel that there were much better options. So what is your opinion? Was going into police the right decision? See, I came into this service after thinking, giving it a thought of that. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सोच के यही करना. मैं satisfied तो definitely हूँ, but there are a lot of things that I need to do. There किसी का है शायद, ये mic on है किसी का. कुछ मेरे को background noise आ रही है. I've muted all. You can unmute yourself now, Arjit. I'm muted all, and now you can unmute. So, yes. तो satisfied तो मैं हूँ अपनी सर्विस से, but have I done what I want to achieve? Like I think मेरे को ये लगता है कि like I need to do more and more so that I can do better. There are a lot of things. There are a lot of things to learn. There are new things to do. तो अभी तक तो मैं satisfied हूँ. फ्यूचर में जब I would want something more to do, तो I will choose that. मेरे को कोई complaints नहीं है अभी तक सर्विस. That's what I want to say. Sir, one more question, that being a typical science background student, how much time does it take to prepare for HPPSC for us? नहीं देखिए, वो तो टाइम तो उससे डिपेंड करेगा ना, स्पीड पे. we know that ना how speed and time are related. तो इसलिए आपकी जितनी स्पीड होगी उतना टाइम लगेगा. बट हाँ, ये जरूर है कि एक फिक्स्ड जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ही लगेगा. देयर इज नो सच थिंग, ऐसे कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं कि आप रोज 8 घंटे पढ़ेंगे तो हो जाएंगे. देयर कांट बी, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो ना. तो टाइम तो नहीं बता पाएगा कोई भी कि इतने टाइम में हो जाएगा. बट हाँ, ये जरूर है, जैसे मैंने कहा, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक 1 साल का टाइम है. उस टाइम वो तो पेपर का ही टाइम होता है. उसके पहले आप जितना टाइम आप 10 साल लगा के भी तैयारी करें तो कई बार नहीं होता. कई लोग 4 महीने में तैयारी करते हैं और तब भी वो कर लेते हैं. सो आई थिंक देयर इज नो क्लियर कट वे. आप कितने स्पीड और टाइम को बैलेंस करके चलेंगे, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड व्हिच हाउ मच टाइम इट विल टेक. Thank you, sir. Thank you, Raj. Hello, sir. Hello, Good sir. evening. Sir, Hello, good Kushal. evening, I am sir. also from Muna, sir. सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि हमें एनसीईआरटी वगैरह इस बुक से स्टार्टिंग करनी चाहिए या कैसे, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए सर इस सब्जेक्ट यूपीएससी की तैयारी से? बिल्कुल, मैंने तो एनसीईआरटी से ही शुरू किया था. एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बेसिक है. इट इज इजी टू रीड, अंडरस्टैंड. मैंने आज तक कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी फॉर एग्जांपल. तो ज्योग्राफी जब मैं पढ़ूंगा एनसीईआरटी की तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली हो जाएगी. आई कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट रियली वेल. एंड बट वो एनसीईआरटी की बुक तो मैं प्रिस्क्राइब करूंगा ही करूंगा डेफिनेटली. आप सभी जितनी भी एनसीईआरटी तो फ्री में अवेलेबल भी है आपको ऑनलाइन. आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए. उसको तो कई बार रिवाइज करना पड़ेगा. इनफैक्ट एनसीईआरटी की एक किताब जो है यू कैन रिवाइज विद इन लेट्स से हाफ एन आवर, आधे घंटे में. जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएंगे, इनफैक्ट 15 मिनट में आप एक किताब को पढ़ सकते हैं. जब उसको 6-7वीं बार पढ़ेंगे आप, क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप अंडरलाइन करेंगे एंड यू हैव ऑलरेडी रेड देम. योर फंडामेंटल्स आर क्लियर. ठीक है. तो एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली आई रिकमेंड. देयर आर न्यूज़पेपर्स which are important. There are competitive magazines which are important. आपके पास ऑब्वियसली अब ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं. वो सब चीज़ें आप यूज करिए एंड यू मेक अ शेड्यूल. आई थिंक आपका, जब मेरा ये मानना है कि एक अटेंशन स्पैन 20-25-30 मिनट से ज़्यादा वैसे यूजुअली होता नहीं है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का. अभी देखिए
100 से 77 हो गए पार्टिसिपेंट जैसे ही हमने 1 घंटे से ऊपर चला गया हमारा ये लेक्चर। तो ये नॉर्मल सी बात है कि आधा घंटा 45 मिनट से ज़्यादा किसी का टेंशन स्पैन वैसे भी नहीं होता। तो आप भी अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं और उसका अगर आपकी फुल एफिशिएंसी होगी, आई डोंट थिंक इट विल हैपन। यू शुड टेक योर टाइम। अपना जब सबसे ज़्यादा आपका दिमाग तेज चलता है सुबह के टाइम, शाम के टाइम, व्हेन यू आर गुड एट अलर्ट एट सच थिंग, तो आप इस तरह की चीज़ें पढ़िए। आई थिंक knowing something is not important. I mean, it is important, but it is not the only thing to get you through. Understanding things is much more important when it comes to writing the exam. जैसे मैंने कहा, मेंस का एग्जाम लिखने के लिए आपको सिर्फ 10 चीजें पता है ये जरूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उस पेपर में हर चीज पता हो। देयर आर ऑफन सिचुएशंस वेयर यू विल नॉट नो द आंसर्स। आपको खुद बनाना पड़ेगा आंसर, कहीं आपने कभी सुना हुआ। इतना वास्ट सब्जेक्ट या इतना वास्ट सिलेबस है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें जो है आपको थोड़ी सी उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। नोइंग थिंग्स इज अ पार्ट ऑफ इट, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इज मच मोर इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगी आपको, क्योंकि बेसिक से है बिल्कुल। बच्चों, स्कूल बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं उस तरह का उसमें लिखा हुआ है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सर करंट अफेयर के लिए कब से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे हमें एग्जाम 2024 में देना है, अभी हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो करंट अफेयर कब से स्टार्ट करना चाहिए सर? देखिए, हाँ, 2024 में आज के करंट इवेंट तो करंट रहेंगे नहीं। तो आई थिंक इट इज नॉट राइट टू क्रैमिंग इट या रट्टा मारना उसको आप अभी से शुरू कर दें। बट एज आई सेड कि अभी आपके पास 24 तक अगर टाइम है तो अपने कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, आप अपने राइटिंग स्किल पे काम कीजिए, आप अपनी रीडिंग पे काम कीजिए, अपने स्पीकिंग पे काम कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब चीज़ों पे काम कीजिए। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपको लिखना बहुत पड़ेगा। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है यूपीएससी की। तो आपको आई थिंक यू शुड सिट एंड स्टार्ट राइटिंग एसेज और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कीजिए। What are the concepts? Monsoon for example, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। What does it mean? अब वो क्रैम करना कि इस साल मानसून कितने बजे आया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। 2024 में जब आप प्रीलिम देने जाएंगे तो उससे कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले या 1 साल पहले जो है आप वहाँ उस पीरियड के वो थोड़ा सा अगर रिवाइज करने लगेंगे, मैगजीन्स या इंटरनेट पे रिसोर्सेज से आपको मिल जाएगा, तो फिर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दैट इज माय सजेशन। या गुड इवनिंग सर. So my name is Rishabh Sharma and I am from Electronics and Communication branch. Sir, you talk about perseverance. So my question is, apart from perseverance, what are the core qualities which an officer or especially a police officer must have? देखिए, there is no predefined straight jacket qualities which are there. हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की वो होती है। But I think these are basic. You have to be टैलेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हार्ड वर्क है perhaps. So like you have to be hard working somewhere. You, as I said, you have to be perseverance आप में होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी हमेशा ही सक्सीड हो रहा है ना, that person will not learn a lot. Person who has perhaps failed a few times and still is able to pull himself together, अपना mental condition, अपना physical condition वो फिर भी maintain कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल कईयों को देता हूँ ना कि उसेन बोल्ट जो हमारा ये है द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, वो कितने साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने भी है वो दौड़ता है फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स में उसकी दौड़ सिर्फ 10 सेकंड की होती है, वो 10 सेकंड से कम, ऑब्वियसली 9 पॉइंट जितना भी उसका वो है। तो इतने जब वो 5 साल या 6 साल की मेहनत केवल 10 सेकंड के लिए कर रहा है, तो आई थिंक हमको रियलाइज करना चाहिए कितनी परसिवियरेंस, कितना हार्ड वर्क जो है वो उसमें डालता है फॉर सच ए स्मॉल थिंग। बट अल्टीमेटली मान लो जब उसका ओलंपिक्स में दौड़ने लगा, उसकी टांग वांग टूट गई, कुछ हो गया, तो दैट ऑल मेहनत इज गॉन बैक, बट दैट इज नॉट स्टॉपिंग हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। सो आई थिंक उसलिए भी आपको सक्सीड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सक्सेस ओरिएंटेड जो अप्रोच है ना, वो कई बार बैकफायर करती है, मेरा ये मानना है। आपको यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, और उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए।
होगा नहीं होगा, क्या करूँगा। कई लोग तो इसी में परेशान हो के अपना जिसको बोलते हैं तैयारी खराब कर देते हैं। सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट दैट there are certain qualities which are very important, not just for a civil servant as such or a police officer as such, but for almost every individual. Mental strength और ये सब चीजें जो है आपको होनी चाहिए। perseverance, आप लगातार वो चीज को continuously करते रहेंगे। There are 4-5 things like which you should focus on. Perseverance is one of them, hard working is one of them, risk taking ability is one of them, going out of comfort is one of them. Like you जो आज तक नहीं किया वो आज करना कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना कि इसको ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो वो चीजें आप में थोड़ा सा रहना चाहिए। So there are a lot of basic things which you should have. Mental strength is का core, mental and physical capability is one of its core. So I think you should work on that. That is my suggestion. Thank you. Hello. Good evening, sir. I am from district Kangra, Nurpur. My name is Lalit. I would like to ask, what would you suggest, what optional subject would you suggest as an engineer? Because going with engineering subject will definitely bulk up the syllabus and would be quite tedious, whether it's public administration or anthropology. What would you suggest, sir? नहीं देखिए, I gave the exam in 2011, which was too long ago. आज क्या सब्जेक्ट काम आता है वो मैं नहीं बोल सकता, उस पर टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। इंजीनियरिंग आप तो स्कूल वूल में होंगे तब, मतलब जब मैंने एग्जाम दिया था, तो इतना 10 साल पुरानी बात जो है वो अभी मैं उसको आई कांट कंपेयर इट राइट नाउ। बट हाँ ये जरूर है कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो मैंने भी नहीं लिए थे। आई एम नॉट सेइंग कि इंजीनियरिंग के साथ लोग क्लियर नहीं करते हैं ऑब्वियसली, people do it with engineering, or in fact lot of toppers are from engineering subjects, क्योंकि साइंस में तो क्लियर कट है ना, the answers are clear cut, so there is no chance। फिजिक्स के टॉपर्स होते हैं, केमिस्ट्री के टॉपर्स होते हैं। बट हाँ ये जरूर है कि I chose geography and psychology as subjects which were quite different from engineering obviously। तो वो तो आप पे डिपेंड करेगा। I think you will have to do the research now। मैं थोड़ा आउट ऑफ टच हूँ ये यूपीएससी प्रिपरेशन के मामले से, क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो उस पे काम करें तो आई थिंक बेटर रहेगा। इट वोंट बी राइट ऑन माय पार्ट टू सजेस्ट, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। सर सेकंड क्वेश्चन, ये रॉ और बाकी जो फेडरल एजेंसीज हैं जैसे एनआईए, तो इनका रास्ता भी इसी के थ्रू जाता है? नहीं देखिए, आईपीएस ऑफिसर्स आर यूजुअली डीलिंग विद बेसिकली दे आर इन चार्ज ऑफ सर्टेन थिंग्स, मतलब ऑपरेशन स्पेसिफिकली उनका और भी तरीके चैनल्स आते हैं, वो अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं ये एजेंसीज, और ये बाकी सर्विसेज से भी लेते हैं, ये आर्मी से भी लेते हैं। सो लाइक देयर लॉट ऑफ अदर चैनल्स व्हिच आर देयर, बट यूजुअली जैसे आईबी को हेड करने वाला एक आईपीएस ऑफिसर होता है, या आरएनडब्ल्यू को हेड करने वाला एक आईपीएस ऑफिसर होता है, तो वो रोल है एक तरह का। और भी तरीके हैं, मतलब इनके एग्जाम निकलते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। You can give those exam also and like get through, but फिर वो अलग उसमें रहेगा रोल में, रैंक होता है ना जैसे, तो वो अलग रैंक होगा, ये अलग रैंक होगा। Yes, that's what I would say. Thank you, sir. Sir, myself Akash, I'm in final year in computer science. सर एक सेल्फ डाउट है कि अभी स्क्रैच से स्टार्ट करना क्या लेट हो चुका है क्या? सर क्या आइडियल टाइम क्या है? सर अगर स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अभी, तो वो लेट हो चुका है सर, वो पहले स्टार्ट करने चाहिए थी, ये एक डाउट है। नहीं, अब स्टार्ट तो स्क्रैच से करनी पड़ेगी, और कैसे करोगे? नहीं सर, ग्रेजुएशन के साथ साथ भी तो हो सकती है। नहीं, ग्रेजुएशन के साथ तो हो सकती है। आई एम सॉरी, डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी, बच्चों की आवाज है, मैं जरा एक पब्लिक प्लेस में बैठा हूँ, तो आई होप नो वन इज डिस्टर्ब्ड विद इट एंड मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी। तो नहीं देखिए, स्क्रैच से स्टार्ट करना तो इसलिए जरूरी है ना कि देयर इज नो अदर वे टू स्टार्ट। आपको ग्रेजुएशन के दौरान ये करना चाहिए था, यस, बट ऐसा भी नहीं है कि आप लेट हो गए। फाइनल ईयर में आप स्टार्ट कीजिए। मैंने तो यार कॉलेज से पास आउट होने के 5 साल के बाद शुरू किया था। सो आई डोंट थिंक, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी लीजिए, कुछ नहीं होता। अभी कई बार सक्सेसफुल होते हैं, कई बार नहीं होते। लकीली मैं सक्सेसफुल हुआ है, और इसलिए आप लोग मेरे को सुन रहे हो। जो कई लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एटलीस्ट प्रिपेयर्ड, उन्होंने रिस्क लिया। सो आई डोंट थिंक अभी तो फाइनल ईयर में हो, आपको कहाँ लेट हुआ।
कोई डेट नहीं हुआ आपको, आप तैयारी शुरू कीजिए। Yes. Sir, Thank you, sir. I have a doubt. Yes. Sir, I am This will be Pankaj the Nayak last and I am question from for the session. I am from Sir, Jhansi. one more, please, sir. Sir, I have a हाँ doubt बताएं। that we are in college, like we are in second or third year. Sir, so जैसे एक प्रॉब्लम होती है हमेशा, एक मेंटली एक प्रॉब्लम दिमाग पे रहती है कि हम अगर ब्लाइंडली हम सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग गए एंड वी जस्ट हमने एकेडमिक्स पर सिर्फ इतना ही ध्यान दिया कि बस हमारा एकेडमिक्स अच्छा हो जाए, सीजीपी हो जाए, हम थोड़ा सीख भी लें, लेकिन सर टाइम के साथ साथ मतलब ये भी डर होता है कि अगर सिर्फ हम यूपीएससी पे ध्यान देंगे तो शायद उसमें ना हुआ तो हम फोर्थ ईयर के बाद खाली बैठ जाएंगे। एंड अगर हम ये भी सोचते हैं दिमाग पे कि अभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर या फिर अपनी कोर में जॉब में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे नॉर्मल जॉब लग जाए और जॉब के साथ साथ भी प्रिपेयर कर लेंगे, तो सर ये हमेशा ही मेंटली डाउट रहता ही है हमेशा, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करो या फिर सोचो भी स्टार्ट करने के लिए, इस चीज के लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए सर। नहीं देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि अब अगर व्यवहारिक बात की जाए ना तो प्लान बी तो हमेशा होना ही चाहिए आपके पास, क्योंकि यूपीएससी तो 10 लाख आदमी देता है, अगर 10 लाख का 10 लाख हो गया होता है इस एग्जाम में, होते हैं लग के 1100 1200 उससे भी कम, तो आप सिर्फ यही तैयारी करेंगे ऐसा तो नहीं मानना चाहिए। आप लोग फिर खुद पे प्रेशर जरूर बना लेंगे, ऑब्वियसली साथ साथ में आपको कोई ना कोई ऑप्शन वो होना चाहिए, बट मैं ये सोचता हूँ कि आप कम से कम ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग और वो सब तो कीजिए कि ऐसा ना हो कि आपका इंजीनियरिंग वगैरह में ही कोई फर्क पड़ जाए और आप बिल्कुल इसमें तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको ग्रेजुएट तो होना ही है, बट एक आध साल तो आपको सिंसियरली देना चाहिए एग्जाम को, अगर आप दे रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपको वैसे ही पता चल जाएगा। देखिए जिसको बोलते हैं ना एक सेल्फ इमेज, मतलब एक इमेज होती है ना सेल्फ की, जो आप एक आइडियल सेल्फ होता है, एक एक्चुअल सेल्फ होता है, मतलब ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। आइडियल सेल्फ ये होता है कि मैं ऐसा होना चाहिए मेरे को, मतलब मैं बिल्कुल पंक्चुअल हूँ, मैं कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करूँ, मैं कोई भी एक्टिव रहूँ, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग हूँ, ये आपका आइडियल सेल्फ है, ये जो आप बनना चाहते हैं या कैसा होना चाहिए। और एक आपका एक्चुअल सेल्फ होता है जो आप हैं, कि आप जो है कुछ भी हो जाए, आप कई बार चीजें आधी अधूरी छोड़ देते हैं, कई बार चीजें आप 10 चीजें करने का सोचते हैं पर एक भी नहीं करते हैं, तो एक्चुअल सेल्फ का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक्चुअल सेल्फ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा और अच्छी प्रिपरेशन से एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें अगर प्रॉपरली फॉर एग्जांपल नहीं होता है नहीं होता है, तो आपको क्लियर कट वैसे पता चल जाए कि आप इफ यू आर कट फॉर दिस एग्जाम और नॉट। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते हैं, सभी कर सकते हैं, बट आई थिंक हमको वो आइडियलिज्म नहीं लेनी चाहिए कि भाई मैं तो पहली बार ही एग्जाम दूंगा, पहली बार ही अपने होम काडर में झारखंड काडर में आईएएस लग के आ जाऊंगा। तो ये थोड़ा मेंटल प्रेशर पकड़ा बनता है, जब होगा नहीं होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको प्रोसेस एंजॉय जब तक आप नहीं करेंगे, जैसे मैं हुसैन बोल्ट को बोल रहा हूँ ना, अगर वो 4 साल सजा मान के चलेगा तो 4 साल तक वो कर ही सकता इतनी मेहनत। आप भी अगर ये सोच के करेंगे कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरा अगर पेन टूट गया मेरे पेपर में, मगर मैं जानी बीमार हो गया या कुछ भी, या मेरा हुआ ही नहीं, सक्सेसफुल ही नहीं हुआ मैं, तो आपके ऊपर माइंड में बहुत प्रेशर रहेगा। आई थिंक उसका तो फायदा ही कुछ नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं आईने के सामने बैठ के खुद ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। और अगर करना चाहता हूँ तो क्या मैं फुल डेडिकेशन का करूँगा, चीटिंग तो नहीं करूँगा कि मैंने सोच तो लिया पर 1 महीना मैंने तैयारी की, 2 महीना मैंने तैयारी की, तीसरे महीने यार छोड़ो कहीं घूमने चलते हैं, मेरे दोस्त जा रहे हैं उनके साथ। तो वो चीजें थोड़ी सी फोकस करनी पड़ेगी आपने। अगर फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर और ये चीज सिर्फ इसी में नहीं, यूपीएससी में हर चीज में काम आती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप 2 दिन करें, 4 दिन करें, 1 महीना करें, उसके बाद छोड़ दें तो 1 हफ्ते के अंदर वापस ऐसे होता है। तो इसलिए तैयारी तो आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 महीने के बाद सोचते हैं यार चलो छोड़ो आज कुछ और करते हैं।
या 6 महीने के बाद आप सोचते हैं कुछ और करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई प्लान बी ना रखें। ऑब्वियसली यू नीड अ प्लान कि अगर ये नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा 10 लाख लोगों में से 1200 का होता है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो थोड़ा माइंड में रखना जरूर चाहिए आपको, क्योंकि ये व्यवहारिक बात है, प्रैक्टिकल बात है। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। और इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी ना करें ये सोच के कि यार यूपीएससी में तो होगा ही नहीं मेरा। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो चाहिए थोड़ी सी आपको। Excuse me, sir. Good afternoon. Good evening, sir. जी जी Sir, myself Pankaj Sen. I am from Rajasthan, second year हाँ जी student, sir, mechanical. From जी 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 mechanical. Sir, I want to ask, sir, what reason caused you to prepare for UPSC preparation? सर जैसा कि सर आपने कहा कि मुझे मतलब 5 साल बाद में मैंने तैयारी की, हाँ तो हाँ मतलब हाँ एक मतलब सर एक सॉलिड रीजन तो रहा ही होगा आपका। और जैसे अभी सर मैं सोच रहा हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ सर अभी मेरा रीजन तो बेसिकली वही है कि अपन को फेम मिलेगा, थोड़ा अच्छा मतलब एक हाँ। बढ़िया लाइफस्टाइल मिल जाएगी। सर उसका एक अच्छे रीजन क्या होने चाहिए सर, थोड़ा वो गाइड कर नहीं दीजिए, देखिए मतलब मैं किस तरह से प्रोसीड करूँ हाँ सर। हाँ सही बोलिए। नहीं देखिए क्या चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आपने बोला ना कि मेरे को ये सब मिलेगा, आई थिंक यही शायद इनिशियली तो यही कारण रहता है। आदमी ये सोचता है कि यार चलो बढ़िया है, गाड़ी है, 4-5 लोग होंगे, लूट मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सब देख के इंस्टाग्राम और आजकल उससे बहुत सेलिब्रिटी बने हुए हैं, IAS IPS ऑफिसर। तो ये चीजें देख के चलो आपका इंटरेस्ट वो है, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद इट। बट मोटिवेशन क्या होनी चाहिए वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा वंस यू गो देयर। मैं अपना अगर एग्जांपल दूं तो मेरे परिवार में कुछ हैं जो सम पीपल आर इन सिविल सर्विसेज। तो शायद कोई चीज़ आप नज़दीक से देखते हैं और प्रेशर देखते हैं तो आपका इंटरेस्ट नहीं होता कि नहीं यार ये नहीं करना है मैंने। फॉर एग्जांपल अगर किसी के फादर डॉक्टर होंगे तो हो सकता है वो डॉक्टर बनना ना चाहे, तो उस तरह का थोड़ा सिचुएशन तो ज़रूर हुआ था मेरा कि इनिशियली मैंने प्लान नहीं किया था। हालांकि मेरे फादर ने सजेस्ट तो किया था कि आप इफ यू वांट टू प्रिपेयर यू शुड प्रिपेयर, बट मेरे फादर ने मेरे को इंसिस्ट नहीं किया कि आप तैयारी करो, यूपीएससी की ही करो। क्योंकि ये ज़रूर है कि शायद मेरा होता ही नहीं अगर कोई मेरे को ज़बरदस्ती करवाता। मैं ये सोचता कि इंटरेस्ट नहीं है मेरा इस चीज़ में। बट इवेंचुअली अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने जब वो सर्विस कर रहा था, मैं वाज वर्किंग इन आईटी, उसके बाद आई वाज थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर MBA. The company that I was working for was sending me to Singapore for further work. But coincidentally मैं दिल्ली में रहता था तब। मेरी सिस्टर जो है शी स्टडीड इन JNU। तो JNU मैं कभी कभी उससे मिलने चला जाता था, उसके फ्रेंड्स जो थे उनके साथ मिला मैं। JNU एक बहुत बड़ा हब है तैयारी करने का, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं काफी लोग। वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि मे बी आई शुड डू इट, द काइंड ऑफ डिस्कशंस दैट वी वुड हैव विद हर एंड हर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा कि यार ये एग्जाम देना चाहिए एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इंटरेस्टिंग इन इट। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने जो है जैसे होता ना आईटी उसमें सेक्टर में होता ना बेंच पे जाते हैं जब आप, तो मैं उस टाइम बेंच पे था। यानी कि आई वाज सपोज्ड टू डू सम सर्टिफिकेशन, सम दैट काइंड ऑफ वर्क, बट इंस्टेड ऑफ those certifications I started with Wikipedia, मतलब I started reading Wikipedia। और विकीपीडिया में मैं काफी रैंडम चीजें पढ़ने लगा आउट ऑफ इंटरेस्ट ओनली, लाइक जैसे होता है ना लिंक पे लिंक क्लिक करते जाओ, इसके बारे में पढ़ते जाओ, हिस्ट्री फिलोसफी जो भी आ रहा था। तो उससे थोड़ा सा मेरे को ये ना कि आई केप्ट ऑन गेटिंग द इंटरेस्ट इनिशियली कि ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और फिर साथ ही साथ जब मैं JNU के स्टूडेंट्स और इन सबसे मिला तो लाइक ये चीजें तो यूपीएससी का एग्जाम है, इसका तो एग्जाम भी है, तो आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। बट आई थिंक आई स्टार्टेड एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। बाद में क्या करना है वो मैंने लेटर रियलाइज किया जब मेरा मेंस हो गया। फिर जब मैं इंटरव्यू के पास जाने गया था तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये एग्जाम जो है इट इज नॉट जस्ट कि भैया आपने एग्जाम क्लियर करना है, इट इज ऑल्सो सर्विस विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रेशर, सिचुएशन, स्ट्रेस, थिंग्स लाइक दैट। तो ये मेरा मोटिवेशन रहा आई थिंक इवेंचुअली। बट जैसे मैंने कहा कि सबकी अपनी अपनी मोटिवेशन होती हैं, मेरी मोटिवेशन तो ये रही कि those JNU people, I think I'll give credit to them, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि आप लोग एग्जाम दीजिए बिफोर द टाइम रन्स आउट और व्हाटएवर। तो मैंने डिसाइड किया एंड आई लकीली आई गॉट थ्रू।
और उसका कारण ये भी रहा कि मैं परसिवियरेंस, देखिए मैं परसिवियरेंस की बात तो कर रहा हूँ, उसका कारण एक ये भी रहा कि मैं सक्सेसफुल रहा। जब मैंने सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं हिंदी में फेल हो गया, जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शायद मैंने हल्के में लिया कि हिंदी इंग्लिश तो पास हो ही जाएगा, बट वो कंपलसरी एग्जाम होता है, उसमें अगर आप पास ना हो तो बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर वगैरह, जितने भी आपने आंसर लिखे हैं, उस सब में आपको चेक ही नहीं करते। तो उस टाइम मेरा बहुत वो हो गया था कि यार ये तो मैं एग्जाम के दे ही नहीं सकता मैं। बट लकीली उसी टाइम मेरा एचएस में हो गया, तो मेरे को लगा कि चलो एचएस में तो मैं इट शोज दैट लाइक मे बी आई कैन डू इट। तो फिर देन आई गिव एग्जाम अगेन। तो ये थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन, तो आई थिंक यू हैव योर ओन रीजन टू चूज। अब ये भी ठीक है कि आपकी इंस्टाग्राम में बहुत फॉलोअर्स होंगे, ये भी एक अच्छा मोटिवेशन है। अच्छा, someone has asked me how to contact me. मैं अपना नंबर लिखवा दूं सर? you can follow me on Twitter and Facebook or whatever, like you send me request. Facebook तो मैं जैसे, हालांकि सोशल मीडिया में मैं इतना करता नहीं हूँ, बट फोन पे भी दिक्कत ये आती है कि कई बार आई गेट टू मेनी मैसेजेस वेयर आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। बट मेरा नंबर आप जरूर नोट कर लें, मैं अगर लिख दूं यहाँ पे, इट इज 9816006938। I have given the number also in case anyone has some query. बस ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट के वो मीम्स मत भेजते रहना वैसे। So, Sir, could you please type it, sir? I'll share it with the team, and the team will go on to share with you. I have the number. I'll be sharing it with the team. Okay. So because we have eaten into his time, lot of time, and he's traveling. It is so kind of him to spare such a time. I'll request Apurva to give a formal vote of thanks, and then I'll close the session by personally thanking Arijit for it. So may I request Apurva to give a vote of thanks? Thank you, sir. Every ending is just a new beginning in disguise. The ending of this mesmerizing session marks the beginning of many new possibilities and knowledge about a number of worthy opportunities. On behalf of Office of Dean Alumni Affairs and Resource Generation of NITH, I take pleasure in thanking you for your presence and giving us your precious time, sir. We all are very inspired and grateful for the knowledge that you shared with us today. Without taking much more time, I would like to thank our administration, management, the task team, and the audience to make this session a great success. It was an honor to have you, sir. Thank you. Thank you, Arijit. It was so nice of you to be with us today. Despite your busy schedule, you have been with us. He was traveling yesterday also, so the audience should be really thankful to him. He is traveling today also, and despite busy schedule, he's been able to engage this session. One must realize that he has been very humble in stating his father was an IAS officer and mother too, if I'm not wrong. And we never came to know about all these things till very late phase, despite our association for such a long time. And with these words, I again thank you, and we are going to close the session. So Arijit, we are going to close the session. Thank you again. Thank you very much. Good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for your time, sir.